So ionic bond, which is also called electrovalent bond. वालेकुम अस्सलाम। आया फिर बंद कर दूं। लो okay, so this one is quite high. आप अगली चेयर पे आ जाओ। ये तो मैल फंक्शन चेयर्स हैं, ये पीछे रखवाई थी मैंने, फिर आगे आ गई। The armrests are very high. Okay, so chemical bonding में we have started with the first topic, ionic bond, जिसको हम electrovalent bond भी कहते हैं, but the common word is ionic bond. If examiner uses electrovalent, so it means के you need to know this before, it's in your syllabus, but again the term that we always use is ionic bond. Ionic bond is made by the transfer of electron, complete transfer of electron from one atom to the other atom. अब इसमें we don't want to add word metal to non-metal, because ionic bonds are made between metal and non-metal, no doubt, but आगे चल के आप देखोगे कि some metals could even make covalent bonds. ठीक है, इसलिए मैं metals को ionic bond की list में सिर्फ restrict नहीं कर रहा. Some metals, as we study after this, could make covalent bonds also. तो इसके लिए इसकी definition में would simply write it's like bond formed by complete transfer of electron from one atom to the other atom. So your definition for the ionic bond must have this complete transfer word in it. Okay, so इसकी जो examples हैं, we have those dot cross diagrams and everything, वही हम practice करेंगे यहाँ पर. इसकी जो examples हैं उसमें in dot cross diagrams, we start with our favorite one, that is sodium chloride. NaCl का dot cross diagram. अच्छा, अभी in A level we try and make things simple according to the syllabus requirement. तो जितनी dot cross diagram मैं board पे draw करूँगा, you just draw that. Actually, O level IGCSE में you study these topics in initial grades like O1, 2 में, grade 9, 10 में पढ़ते हैं. तो वहाँ teachers आपको बड़ा details में पढ़ाते हैं कि ये सोडियम का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, इसके पास आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 है, तो फिर सोडियम से एक एरो कि जी सोडियम उसको इलेक्ट्रॉन देगा. हाँ, और फिर उसके बाद आफ्टर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन ये बन गया, क्लोराइड ये बन गया. We don't do that in A level. We just draw the final diagram, which is after the transfer of electron, and then if the question doesn't mention, we don't even draw inner shells. हम सिर्फ outer shells ही बनाते हैं balance. ठीक है? And then we don't need to draw those fancy circles. We can simply write the symbol of the element and put electrons around it. So ये सब, I mean, I'm not making it short for you. It's like Cambridge requirement, like प्रोविजन के स्टूडेंट बस इस तरह से बना दें इसको. मार्क्स स्कीम में भी आपको ऐसे मिलेंगी. बट इफ द क्वेश्चन सेज क्लियरली ड्रॉ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स, तो फिर आपको इनर शेल्स बनाना होंगे, उसके लिए सर्कल्स बनाने पड़ेंगे. तो अब कीपिंग द डायग्राम व्हिच इज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड, सोडियम after losing electron becomes positive one. The outer shell of sodium has 1 electron, वो उसने lose कर दिया. And chlorine after gaining 1 electron will become -1, and chlorine के electrons 7 electrons around it already, और एक उसके पास आ जाएगा सोडियम से dot. So we'll be doing these dot cross diagrams. It means कि जो bonding electrons हैं, they must remain dot and cross.
अगेन इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप पॉजिटिव आयन का आउटर शेल कंप्लीट भी बनाओ। अब देखें सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स 281। डॉट क्रॉस डायग्राम्स के लिए वी गो विद द ओ लेवल कॉन्फ़िगरेशन 288 वाली जो हम पढ़ते थे। अब सोडियम ने आउटर शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इट स्टिल इज लेफ्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स कंप्लीट इनर शेल, राइट। अब यू आर नॉट सपोज्ड टू ड्रॉ दोस 8 इलेक्ट्रॉन्स हियर। अब जब रिक्वायर्ड नहीं है ड्रॉ करना तो डोंट ड्रॉ दैट। इट्स द नेगेटिव आयन whose outer shell has to be drawn carefully, क्योंकि नेगेटिव आयन जो होता है एनाइन उसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसको आपने ड्रॉ करना है करेक्टली, उसके मार्क्स हैं। बट अगर आपने इफ यू फील अनकंफर्टेबल कि जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं नजर आ रहा तो ड्रॉ डॉट्स फॉर इट, डोंट ड्रॉ क्रॉस फॉर इट। क्योंकि देखो क्लोरीन के 7 क्रॉसेस हैं इधर, सोडियम का डॉट है, तो अगर आपने उसके इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने विच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड तो ड्रॉ डॉट्स एंड 8 डॉट्स अराउंड इट। These diagrams that we are doing are dot cross. The full word for it is Lewis dot cross diagram. Lewis was a scientist who suggested these models and diagrams. अब हमारे syllabus में Edexcel में Cambridge में we have Lewis structures. So we cannot use anything else but dot and cross. अब ये मैं इसलिए बातें बताता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नेट से गूगल से पढ़ते हैं, यूट्यूब वगैरह से, तो अमेरिकन सिस्टम में, ऑस्ट्रेलियन, AQA, इवन IB में भी अब they don't mind if you draw electrons differently, especially for the covalent molecules जिसमें there are many atoms। उसमें वो क्या करते हैं कि just to show the electrons different, वो electrons के लिए डॉट लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे, स्टेरिक साइन लगा देंगे, या स्क्वायर, स्टार, ये सब शेप्स यूज करते हैं। अब Cambridge Edexcel doesn't allow that, so unless the question says you cannot use anything else for electrons except dot and cross। I hope I've explained that, right? आपने नहीं यूज करना। अब कैम्ब्रिज के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एग्जामिनर गिव्स यू द की इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन की जिसको हम बोलते हैं। वी डोंट नीड टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन की हियर कि जी डॉट इसका इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस इसका है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। बट एज आई सेड इन सम क्वेश्चंस एग्जामिनर गिव्स यू द की, और मैं उसकी छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ यू वर सपोज्ड टू ड्रॉ NaCl एंड एग्जामिनर सेज यूज Y फॉर सोडियम एंड क्लोरीन के लिए Z यूज करो। There are questions like this where it says use Y for sodium's electron or Z for chlorine. So you see when I draw that, this would all be full of Y's around it and this would be full of Z and one Y. ये बात समझ आ रही है ना? अब अगर क्वेश्चन इजी है, ड्रॉ डॉट क्रॉस ऑफ NaCl, आपने ये नहीं है कि पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर ही डॉट क्रॉस बना के आ जाओ। इफ एग्जामिनर हैज गिवन यू द की, फिर उसकी की फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप वो की फॉलो नहीं करोगे तो इवन इफ योर डायग्राम इज करेक्ट यू डू नॉट गेट मार्क्स ऑन इट, और मे बी नॉट द फुल मार्क्स। लेकिन और स्टार, स्टेरिक, स्क्वायर, डायमंड शेप्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप नहीं यूज कर सकते, अगेन अनलेस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ये बात इसलिए हम शुरू में बता देते हैं ना कि कुछ स्टूडेंट्स जब वो पढ़ते हैं डिफरेंट बुक्स से भी, बुक्स में भी डिफरेंट शेप से बने हुए हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं तो उसमें यू सी दीज थिंग्स, इसलिए बाद में फिर मसला होता है। अब अगेन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वी स्टिक टू द 2 ब्रैकेट डायग्राम, 1 ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट विल बी फॉर द पॉजिटिव आयन एंड द सेकंड ब्रैकेट विल बी फॉर द नेगेटिव आयन। ये मस्ट है। I mean, again Cambridge ने आपको आसानी की हुई है कि if this compound is bigger, अभी हम उसकी एग्जांपल्स करेंगे, इसमें तो the ratio is like 1:1, एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव है, but we'll be doing compounds in which the ratio will be like 2:3, 2:2 and all, so we don't need to draw as many brackets। ये नहीं है कि बड़ा कंपाउंड है तो आप पॉजिटिव की भी 2 ब्रैकेट बनाओ, नेगेटिव की 3 बनाओ। Just draw 2 brackets, एक पॉजिटिव की, एक नेगेटिव की, बट ब्रैकेट्स के बाहर भी राइट द नंबर्स कि कौन कितना है। बट जब आपको सिर्फ 2 ब्रैकेट अलाउड है तो उसमें मस्ट है। मस्ट क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट मस्ट बी फॉर द कैटायन एंड द राइट हैंड साइड ब्रैकेट मस्ट बी फॉर द एनायन। अगर आपको बस स्पेस कम थी तो ये नहीं है कि आपने पॉजिटिव आयन ऊपर बना दिया, नेगेटिव नीचे बना दिया, इसके नंबर काटते हैं वो। Some things are very simple and straightforward in Cambridge and they've given you these relaxations।
और जब आप उसको फॉलो नहीं करते तो फिर उसको नंबर भी पूरे काटते हैं। आपने स्पेस अकॉर्डिंगली मैनेज करनी है, देख के पहले लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव, इसको नहीं चेंज करेंगे। फिर जो मार्क्स मिलते हैं इस पे, पॉजिटिव आयन पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने के कोई मार्क्स नहीं, आपने कर दी अच्छी बात, लेकिन अगर इनकरेक्ट कर दिए तो नंबर कट जाएंगे। इनकरेक्ट क्या है कि क्रॉस बनाने के चक्कर में स्टूडेंट इसको भी क्रॉस लगा देते हैं इधर सारे। अब अगर ये मैं सारे इधर क्रॉसेस कर देता हूँ तो दिस डायग्राम वुड एक्चुअली गेट नो मार्क्स, क्योंकि इसमें ये डॉट डजंट बिलोंग टू एनी एटम इन फैक्ट, क्योंकि आपने क्लोरीन को भी क्रॉस बनाया हुआ है, इसको भी क्रॉस बना दिया और ये डॉट पता नहीं कहाँ से आ गया। तो इसलिए फिर पॉजिटिव आयन बना रहे हैं आप तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर बनाए तो केयरफुली बनाए। जो मार्क्स इसके मिलेंगे वो आपको मिलेंगे करेक्ट चार्जेस के ऑन द ब्रैकेट एंड करेक्टली शोइंग द नेगेटिव आयंस आउटर शेल डॉट क्रॉस क्लियरली, इन चीजों के मार्क्स हैं। अब कुछ एक दो एग्जांपल मैं खुद ट्राई करता हूँ, बनाता हूँ, और फिर एक आध आप भी बनाए। नेक्स्ट वन मैग्नीशियम ऑक्साइड, पहले हम वही एग्जांपल्स करेंगे जो कॉमन है। अब मैग्नीशियम इज इन ग्रुप 2, ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6। मैग्नीशियम्स वैलेंस शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैग्नीशियम क्या करता है अपने, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन ओ लेवल वाली लिख दूं 282, तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ऑक्सीजन आउटर शेल इज 26 एंड ऑक्सीजन नीड्स 2 electrons to gain, तो वो उसको मैग्नीशियम से मिल जाते हैं। The octet rule is the one that we are following all the time. Octet rule. अब after losing 2 electrons, magnesium would get a +2 charge on it, right? +2. तो अगर मैं इसकी 2 bracket diagram बनाता हूँ तो it would be left hand side magnesium which is +2 and the right hand side bracket would be for the oxygen, oxide ion which is -2, और ऑक्सीजन का वैलेंस शेल जो है इट्स ऑलरेडी हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स विद इट, राइट। राइट हैंड साइड ब्रैकेट को हम टिपिकली क्रॉस के साथ दिखाते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बाय द वे। आप क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को डॉट कर सकते थे, सोडियम को क्रॉस कर सकते थे, इसमें इशू नहीं है। बट कन्वेंशनली अगेन कैटाइन इलेक्ट्रॉन्स और डॉट्स और नेगेटिव आयन को क्रॉस से दिखाते हैं। जी प्लीज, इससे इशू नहीं है। ये जो एलिमेंट्स है जिनकी वैलेंसीज फिक्स्ड है, जैसे ग्रुप 1 है, 2 है, 5, 6, 7 है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसीज फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होते। उसमें आप चार्ज और डिजिट पहले लगा दो तो इशू नहीं है। ट्रांजिशन मेटल्स के केस में वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरिएबल, तो वो हम चार्ज बाद में लगाते हैं, ठीक है, इसमें इशू नहीं। अच्छा, अब जब आप इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे 6, तो इट वुड बी 1, 2, 3, 4, 5 and 6 crosses and then 2 dots जो मैग्नीशियम से इसको मिले वो आप इस तरह से दिखा दो, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब these are like the 8 electrons in the valence shell of oxygen। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज जो आप कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते वो ये कि ऑक्सीजन के आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बना दिए 3 पेयर्स, और फिर मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह बना दिए। I mean eventually magnesium is giving 2 electrons, right? But you cannot show those 2 electrons together. You have to show them with oxygen 1 electron each. इसका रीजन ये है कि आगे हमने डेटिव बॉन्ड पढ़ना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसमें अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो वो डेटिव बॉन्ड काउंट होता है, आयोनिक और कोवलेंट में सेम इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। सो द थिंग इज के मैग्नीशियम से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं they would actually pair with oxygen 1 by 1, दोनों एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है, ये बात समझे, इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स बट इट्स नॉट लूजिंग दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं देता, पहले एक इलेक्ट्रॉन देता है फिर दूसरा आता है। जो पहला इलेक्ट्रॉन आता है वो एक ऑक्सीजन से पेयर कर लेता है, फिर दूसरा आता है वो पेयर कर लेता है। सो इट इज एक्चुअली अ डॉट एंड क्रॉस इन पेयर। अब ये आप बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते। हाँ, डॉट क्रॉस पेयर को कहाँ रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, ऊपर नीचे, इसका कोई इश्यू नहीं है, जहां मर्जी बना दें। इवन इधर भी जैसे मैंने कहा ना कि कैम्ब्रिज वाले, ये तो करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट है उसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है लेकिन थोड़ा वो नॉटी मूड में,
तो वो क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह बना देता है। Looks weird, right? But as a teacher, I won't be able to cut any marks on it. क्योंकि उसने ठीक पेयर्स बनाए हैं, 4 पेयर्स, 2 डॉट क्रॉस एंड 2 क्रॉस। इस पे कैम्ब्रिज वाले कहते हैं कोई नंबर नहीं काटेंगे आप, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन समहाउ सारे एक साइड पे स्क्वीज कर दिए। इट्स परफेक्टली फाइन बिकॉज वी डोंट नो, आई मीन वी रादर नाउ नो कि शेल्स और सब शेल्स इस तरह से गोल गोल नहीं होते हैं। पी सब शेल डबल शेप, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेप्स में होते हैं। तो वी जस्ट हैव टू शो 4 पेयर्स, 2 डॉट क्रॉस, 2 डॉट क्रॉस पेयर्स, उसमें कोई इशू नहीं है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आई है। अब मैं एक दो एग्जांपल और इसमें ऐड करूंगा। दीज आर द वंस व्हिच आर इन योर सिलेबस एंड गिवन रिपीटेडली। तो इनकी तो प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पेपर में आ जाए तो आपको सोचना नहीं पड़े कि जी कौन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन कितने गेन कर रहा है। अब थर्ड एग्जांपल आप ट्राई अगर करें खुद से, सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम का प्रोटॉन नंबर इज 11, oxygen is 8. Ab you can just draw two ion diagram, two bracket diagram, and with the sodium bracket we simply write 2 outside the bracket, इधर इस तरह से, जिसके जितने आयन्स हैं उसके साथ बाहर ब्रैकेट के वो नंबर हम लिख देंगे, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। one sodium can give 1 electron and it will take 2 sodium to give electrons to oxygen. So we show correct charges on the brackets and the number of ions correctly again. So left hand side bracket for sodium, each sodium is +1. एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, not more. But there are 2 sodium, so I'll put 2 outside the bracket clearly. And then oxygen, anytime oxygen bonds, it will always have this situation in its outer shell. इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये कंप्लीट होगा। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो 2 electrons will come from 2 sodium. Each sodium gives 1 electron. तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम दिखाएंगे as dots again. It would be 2 cross pairs and 2 dots, 2 negative. अब 1 sodium is +1 and 2 sodium will be +2, right? 1 oxygen is -2. Total positive charge and total negative charge will always be equal in an ionic compound. देखो इधर +2 -2, इधर already +2 -2, यहाँ +1 -1, right? So your positive and negative charge will always be equal in an ionic compound. तो लेकिन that doesn't make the charge on one ion change. उस सोडियम का चार्ज नहीं चेंज हो सकता, it will be 1+, but it takes 2 sodium to react with oxygen. ठीक है, इसीलिए the ratio is like 2:1. ये एग्जांपल आपको समझ आ रही है कि एक सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इट टेक्स 2 सोडियम टू कम इन द रिएक्शन, इसलिए इसका फॉर्मूला Na2O है। अब अगर ये एग्जांपल समझ आ गई है तो वी कैन डू वन मोर एंड दैट्स स्लाइटली बिगर वन। अगर आपने ये बना लिया तो वो भी बन जाएगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये सब आपको पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज में इधर उधर मिलेंगे एग्जांपल्स। एमसीक्यूज में तो यू गेट 4 डायग्राम्स एंड यू हैव टू पिक द राइट वन, राइट? वो तो आसान होता है, लेकिन जब स्ट्रक्चर्ड में आती हैं तो फिर खुद ड्रॉ करनी पड़ती है। Al2O3, aluminum's proton number is 13, oxygen is still 8. इसको ट्राई करें जरा। एक ब्रैकेट आप एल्यूमिनियम की बनाओगे और एक ऑक्सीजन की। एल्यूमिनियम will be losing 3 electrons.
एल्यूमिनियम की ब्रैकेट के बाहर विल राइट 2 और ऑक्सीजन के ब्रैकेट के बाहर राइट 3। एल्यूमिनियम ओ लेवल कॉन्फ़िगरेशन से इसे हम फॉलो करेंगे। एल्यूमिनियम 13 मींस इट्स लाइक 283। So how would aluminum become stable once it loses 3 electron, because aluminum is in group 3 already, ठीक है? तो 3 ग्रुप वाले जो है उनकी वैलेंसी +3 होती है, and oxygen will always be like 2 negative, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए लाजमी। अब इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले वो भी एक्सप्लेन कर दूं, ये समझे जरा, ये रेशियो वाला बाद में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट? So one aluminum and one oxygen cannot react at all, because eventually aluminum के पास एक extra electron है, वो oxygen को नहीं दे सकता। अब the thing is, it takes 2 aluminum to satisfy 3 oxygen in terms of transfer of electron. क्यों? Because देखो एक oxygen को कितने electron चाहिए? 2। 3 oxygen को कितने चाहिए होंगे? 6। अब 6 electron oxygen मांग रही है। अब एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इट विल टेक 2 एल्यूमिनियम टू बैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इस तरह से ये रेशियो इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन्स की और चार्ज की। लेकिन द चार्ज ऑन वन एल्यूमिनियम विल रिमेन +3, उसने तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए ना, और ऑक्सीजन ने 2 ही गेन किए, उन पे चार्जेस नहीं चेंज होंगे, वो उनके जो इंडिविजुअल वैलेंसीज है वही रहेंगे। So if you've done this, so it would be left hand side aluminum bracket, which will be +3 Al, but outside that we'll write 2 clearly. अगर आप ये 2 नहीं लिखोगे तो इस डायग्राम के कोई मार्क्स नहीं है, क्योंकि चार्ज इक्वल नहीं हो रहा फिर। और ऑक्सीजन की ब्रैकेट on right hand side, and as I said earlier, oxygen will always be like having 6 electrons, 2 dot cross pairs and 2 cross, and 3 oxygen के साथ। अब कैम्ब्रिज ने जब आपको रिलैक्सेशन दी हुई है कि जी जस्ट 2 ब्रैकेट डायग्राम बनाएं, लेकिन बाहर नंबर जरूर लिखें, तो फिर अगर आप ये नंबर मिस कर देते हो तो मार्क्स नहीं है, बिल्कुल ये याद रखें। अदरवाइज जो पहला पुराना मेथड था उसमें वो इंसिस्ट करते थे कि स्टूडेंट शुड ड्रॉ एज मेनी ब्रैकेट्स एज देयर आर इन द कंपाउंड। एज मेनी ब्रैकेट का क्या मतलब होगा? 2 एल्यूमिनियम की ब्रैकेट और 3 ऑक्सीजन की 5 ब्रैकेट बनाओ, और फिर वो मार्क्स काटते थे जब सीक्वेंस ठीक नहीं रखा स्टूडेंट ने, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे। तो अब उन्होंने वो चीजें खत्म कर दी हैं। वो कहते हैं जी 2 ब्रैकेट इज गुड इनफ, इट सेव्स टाइम, एंड लाइक रियल इन रियलिटी साइंटिस्ट फॉलो दैट। तो लेकिन फिर ये है कि ये चीज मस्ट है उसके साथ होना। अब अगर ये एग्जांपल क्लियर है तो एक छोटी सी चीज इसके साथ ऐड कर दूंगा, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेंगे यानी कंपाउंड की, उससे आगे इसमें कुछ नहीं है। ओ लेवल में जितना आप लोगों ने पढ़ा टेक्निकली वही चीज है। इस चैप्टर में आगे नए टॉपिक्स आएंगे, बट जो शुरू के टॉपिक्स हैं कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, दे आर टेक्निकली जस्ट लाइक द ओ लेवल टॉपिक्स, बट इंटरेस्टिंगली इनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। डॉट क्रॉस डायग्राम इवन A2 तक एग्जामिनर पूछ रहा होता है, CO2 की बना दो, वाटर की बना दो, इजी क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। अच्छा, अब वेरी क्विकली इस पॉइंट को आप इस एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन the electrostatic charges on the ions। एक कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का जो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो उसके आयंस पे जो चार्जेस हैं उस पे डिपेंड करती है। ग्रेटर द चार्जेस स्ट्रॉन्गर द आयनिक बॉन्ड, ठीक है? इस पॉइंट को भी मैं इधर लिख देता हूँ। हायर द चार्जेस, electrostatic charges, stronger the ionic bond। अब आयनिक बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। Like among all the physical properties, you get to predict this melting point between the compounds. So the strength of ionic bond depends on the charges of the ions,
more charges, stronger ionic bond, higher melting point. इसकी जो example है, it's like these dot cross diagrams that we done. इन्हीं में let's say इसी के नीचे आप ऐड कर लें ये point. Example में we have this sodium chloride, magnesium oxide, and aluminum oxide. All these three are ionic compounds, electrovalent compounds. अब अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से सबसे strongest ionic bond किसमें है, so how would you apply this concept? Strongest ionic bond among the three. बताओ शाबाश, easy है. Al2O3, and the reason for that is that the total positive charge, इसमें total positive charge कितना है बताओ शाबाश. एक एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज था, +3, and 2 aluminum will be +6 times 2 करोगे ना, and negative -6 obviously. तो ये +6 -6 +2 -2 +1 -1. So from +1 -1 I'm going to +6 -6. So it's actually increasing 6 folds. तो जितने चार्ज स्ट्रॉन्ग है उतनी बॉन्डिंग पक्की होगी. Strong ionic bond. Strong ionic bond would mean it will take lots of high temperature to melt aluminum oxide. ठीक है ना. तो मैंने शायद ये पूछा, the strongest ionic bond इन तीनों में इसका होगा, और highest melting point भी aluminum oxide का ही होगा. In fact, sodium chloride can melt around 800 degrees Celsius, and aluminum oxide melts around 2700 degrees Celsius. So it's not like something theoretical. It reflects in the physical property of the compound also. Ionic compound बहुत सारे हैं, कुछ में strong ionic bonding है, कुछ में थोड़ी weak होती है, और वो उनकी physical properties में नजर आती है, reflect होती है. So much so कि जिन compounds में ionic bond weak होता है, they're highly soluble in water. So NaCl is soluble, highly soluble. लेकिन aluminum oxide is not, क्योंकि water is not strong enough to break the bonds in aluminum oxide, क्योंकि उसका ionic bond इतना पक्का है. लेकिन सोडियम क्लोराइड का आयनिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वाटर उसको ब्रेक करके डिसॉल्व कर देते हैं. ठीक है ना. ये चीज थोड़ी हमें A2 में इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन बॉन्डिंग में थोड़ा आइडिया दिया हो तो फिर स्टूडेंट्स को याद आ जाता है. अब इसके साथ हम चीज ऐड करेंगे, वो ये कि व्हेन आई गो फ्रॉम सोडियम क्लोराइड टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो द आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ और मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो वैसे ही हाई होते हैं, लेकिन फिर आयनिक कंपाउंड में भी किसी का ज्यादा हाई होगा या कम हाई होगा. आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ increases toward that side, and then melting point also increases towards that side. अब ये इसमें अगर मैं एक और कंपाउंड ऐड कर दूं, any other compound, so see this thing comes in MCQs. MCQs में आ जाएगा जी which of the following order is correct for the increasing melting point of these compound. तो इस तरह के आपको 4 combinations examiner बना के दे देगा कि जी कौन सा order correct है. अच्छा, इस तरह के जो questions होते हैं ना जिसमें इस तरह compound given और 4 options में इनको arrange किया हुआ बार बार increasing melting point और decreasing melting point से, उसमें अगर आप नोट करोगे तो यू वुड सी कि टिपिकली ऑप्शन डी इज करेक्ट. लेकिन इसको फैक्ट नहीं बना लेना, बस डी को. सर ये अक्सर मैं बता देता हूँ, बाद में मेरे लिए मसला बनता है. फिर आप कर सकते हो अगर लाइक टाइम नहीं है और बस आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, क्वेश्चन आप ऐसा देखोगे तो आपको शायद ये बात याद आ गई तो हेल्प भी हो जाएगी. क्योंकि टिपिकली ऑप्शन डी, उसकी रीजन ये होती है कि जो स्टूडेंट पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं ना, उंगली रख के हर चीज करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, तो इवेंचुअली दे रीच ऑप्शन डी, दे रियलाइज कि दैट वाज करेक्ट वन. इसको ये एग्जाम में उन्होंने आपका टाइम कंज्यूम करने के डिफरेंट मेथड्स एग्जामिनर डालता है. आप फिर ऐसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड ये है कि पहले ऑप्शन डी चेक कर ले, अगर वो नहीं ठीक तो फिर ए से स्टार्ट करो, क्योंकि इट कुड बी एनी अदर ऑप्शन बाय द वे.
मैंने कहा डी होता है बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस, क्योंकि एग्जामिनर्स को भी पता है ना, मेरे जैसे टीचर होते हैं बताते हैं बातें बच्चों को, ये बातें वैसे जो बच्चे जरा प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं ना वो खुद ही आगे बता देते हैं कि सर इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमेशा डी होता है। फिर वो जनरली हमेशा तो वो एग्जैजरेशन टर्म है, लेकिन टिपिकली आप खुद भी देखो, नहीं आप नहीं करो ना, आपको भूल जाएगा ये देखना, इंशाल्लाह याद में नहीं रहेगा। तो खैर वहाँ हेल्प होती है। अच्छा अब वेरी क्विकली एक लास्ट चीज करते हैं, फिर कोवलेंट बॉन्ड कल करेंगे, वो भी ओ लेवल की है। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, 3-4 प्रॉपर्टीज हैं वो लिख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसको मैं ये माइंड मैप की फॉर्म में लिख देता हूँ, आप बेशक पॉइंट्स में लिख ले। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, so when we say physical property, तो we typically refer to the state of the substance, its solubility, conductivity, melting point and things like that, right? So ionic compounds are all solid at room temperature, like none of them is liquid, they're all solid. That is because their melting points are very high, generally very high. तो सेकंड नंबर पे हम लिख देते हैं, they have high melting points. Their melting points are high. Here, they are mostly soluble in water. Mostly soluble, but not always soluble. I mean, some of the ionic compounds like barium sulfate, silver chloride, they're insoluble, right? Lekin mostly they are soluble in water. So, उसके बाद, how about their conductivity? Solid state में ionic compounds are conductor or non-conductor? Solid state में ionic compounds are non-conductor, right? Because their ions are not free to move, they're fixed. तो ये भी हम लिख देंगे, they are non-conductor or non-electrolyte, to be exact, in solid state. But when they are in molten or aqueous form, they're good electrolyte. So good electrolyte in molten or aqueous state. These are like some physical properties of ionic compounds that you need to remember. Or इनकी basis पे फिर you get some MCQs where you have a covalent compound, ionic compound, table बना होता है, conductive उसका melting point लिखा हुआ है, and you have to pick which is the ionic compound or the one which is covalent one. इन चीजों से help होती है। ये हमारा आयनिक कंपाउंड कंप्लीट है। कल करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, डॉट क्रॉस, वाटर, CO2, अमोनिया, मीथेन वगैरह, वो भी ओ लेवल का है, लेकिन कुछ उसमें एक दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ए लेवल के हिसाब से हैं। तो दैट वुड बी ऑल। मंडे को टेंशन में बस इनका मैंने टेस्ट लिया नहीं ना, ओ लेवल में तो हर वीक टेस्ट लेता हूँ, ये बच्चे बचे हुए कोविड की वजह से शायद, तो अब मैंने शुरू कर दी है, वरना ना नहीं जाती, क्यों ग्रेड नहीं आएगा ना।